آج 22 شعبان جمعہ کے دن سب لوگ قرآن پاک کی وہ واحد سورت پڑھ لیں جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 شعبان جمعہ کے دن آپ کے لیے ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، غربت، تنگ دستی باقی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بہن بھائی یہ کوشش کرے کہ ماہ شعبان کی 22 تاریخ جمعہ کے دن یہ ایک نایاب اور مختصر سا وظیفہ ضرور پڑھ لے، جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا لیتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کی 22 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ ہو اور صدمہ ہو، یاد رکھیے کہ ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ہم اپنی ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو ہمارے رزق کم ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کرے جب آپ ذکر اذکار کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کو بتایا وہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس طرح اگر آپ گھر پر ہیں گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر کہوں گے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے، باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 22 تاریخ جمعہ کے دن جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود ابراہیم یعنی نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने खास मकसद खास हाजत की नियत करनी है। मसलन आप किराए के मकान में रहते हैं, ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए। आप कारोबारी मसाइल में हैं, परेशानियां हैं, तो इस चीज़ की नियत कर लें मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े। आप कहीं नौकरी की ख्वाहिशमंद हैं तो इस चीज़ की नियत कर सकते हैं कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। अगर आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती और अपनी मर्जी करती है तो इसलिए पढ़ लें, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं और देख कर चले जाते हैं तो आप इस चीज़ की नियत कर लें मेरे बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए। अलगरज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, इसकी नियत लाजमी करनी है। और आज वो मांगना जो आपको लगता है कि मेरी फला ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती, तो अपने खास मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ तस्मीह पढ़ लिया, तो अब आपने यूँ महसूस करना है दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो बहुत ही आसान छोटा सा वजीफ़ा है, कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से सुकून से पढ़ सकता है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो या वहाब का वजीफ़ा है। या वहाब रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत करके बैठता है वो मकसद ज़रूर पूरा होकर रहता है। आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत या कोई ऐसा काम है, ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत है जो कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज नियत करके बैठना है और रब करीम से जिद करके मांगना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रब की ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी। आपने या वहाब को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु एक बार हो गया, या वहाबु 2 बार हो गया, या वहाबु 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, बड़े आराम से, सुकून और ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना और इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाब पढ़ रहे हैं और आपके मसाइल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और आपके मसाइल गैब से हल हो रहे हैं। गैब से अल्लाह के लिए रिज़्क, माल, दौलत का बंदोबस्त कर रहा है। ये यकीन रखते हुए पढ़ना कि शबान रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ये रब करीम को मनाने का महीना है, रब करीम से अपनी पसंद का नसीब लिखवाने का महीना है। सिर्फ 11 बार या वहाँ पढ़ते दौरान रब करीम से जो आप मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत गैब से पूरी होगी। जब आप पहले नंबर पर 11 बार या वहाँ पढ़ लें तो इसके बाद आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी सूरत के जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। माह शबानुल मुअज़्ज़म है, जिस घर में सूरह कौसर पढ़ी जाती है इस घर में रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है इस घर से सभी नौस्तें, बेबरकतियाँ, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिसे दुकान पर सूरह कौसर पढ़ी जाती है इस दुकान पर गाहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। इस मकसद से तमाम रुकावटें और परेशानी गैब से हल हो जाती हैं। और सूरह कौसर बेऔलादी का बेहतरीन वजीफ़ा है, बेरोज़गारी का बेहतरीन वजीफ़ा है, कर्ज से निजात का बेहतरीन वजीफ़ा है। तो अल्लाह के हबीब महीने में अल्लाह की लाडली सूरत ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है और अल्लाह से ज़िद करके अपनी पसंद का नसीब लिखवाना है। अब आप सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को सिर्फ 10 बार पढ़ना है और आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत से पढ़ सकते हैं, जितना यकीन कामिल से पढ़ सकेंगे पढ़ें। आप तो क्या आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाब को पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। ये 2 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा इंतहाई कमाल का है।
मुजर्रब है। एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। इस आयत में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह इसे नवाजता है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियाँ कहाँ से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आज के बाद आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। इन तमाम की कामयाबियां के बाद अल्लाह शुक्र अदा करने वाले को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है। इसलिए आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिज़्क में, तेरी दौलत में इजाफा करता है, और अगर तू चाहता है कि तेरे रिज़्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर तो रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने मालो जान में बरकतें, वसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रब का शुक्र अदा किया करें। रब की नवाजिश देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। आज के अमल की तरतीब माह शबानुल मुअज़्ज़म की 22 तारीख जुमा के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नियत करनी है। इसके बाद एक ताउज़ और तस्मीह पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर 11 बार या वहाब पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है, तीसरे नंबर पर 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, और फिर आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। जब आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया हुआ है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, ये वजीफा करने के बाद इसकी फजीलत, बरकत, आपकी हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंधें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, जिस चीज़ की तरफ देखेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो मेरा तमाम भाइयों बहनों, जिस किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी का शिकार है, आपके घर में परेशानियां, फाके, तंगदस्तियां, आपके ऊपर कर्ज है, इतना कर्ज है कि इससे निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती, तो अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वजीफा माह शबान की 22 तारीख जुमा के दिन एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेना। हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से, बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई बंदिश, कोई रुकावट है, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और याद रखिए कि जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत मुराद, ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो आपने आखिर में दुआ ज़रूर मांगनी है। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए आपने अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ ज़रूर करनी है। अल्लाह पाक ज़रूर अपना करम ज़रूर फरमाएगा। अल्लाह बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ और रिज़्क की तंगी दूर फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में, बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।